السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارے اس ہمدرد پاٹھشالہ پلیٹ فارم میں آپ لوگوں کو سواگت ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کے حالات زندگی کے بارے میں بیان کریں گے، اور جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ جب بھی اگلا ویڈیو آئے اور آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے حالات زندگی۔ نام شیخ محمد اقبال تھا۔ نام کیا تھا؟ شیخ محمد اقبال۔ شیخ محمد اقبال تھا نام، اور تخلص کیا تھا؟ اقبال۔ تخلص کیا تھا؟ اقبال۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، علامہ اقبال جو ہے 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ پنجاب میں۔ کب ہوئے تھے؟ 9 نومبر 1877۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 میں لاہور میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ لاہور میں ہوا تھا 1938 میں، 21 اپریل 1938 میں۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ امام بی بی۔ والدہ کا نام امام بی بی، اور اقبال کے دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ اقبال کے دادا کا نام کیا تھا؟ شیخ رقیب تھا۔ تو برش آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اقبال کے دادا کا نام شیخ رفیق تھا۔ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اقبال کا تعلق کس سے تھا؟ کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اقبال کے زدہ علی بابا صالح تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ مکتب میں ہوئی۔ پھر عربی فارسی تعلیم میں حسن سے حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اقبال کے استاد مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسین تھے۔ کون تھے اقبال کے استاد؟ تو استاد مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسین تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اقبال نے ٹھیک ہے اسکاچ مشن میں، کہاں؟ اقبال نے اسکاچ مشن میں عشری تعلیم حاصل کیا۔ کہاں تعلیم حاصل کیا؟ عشری تعلیم اسکاچ مشن میں تعلیم کیا۔ اقبال نے 1893 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اقبال نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ 1993۔ کب پاس کیا؟ 1893 میں۔ اقبال پہلی شادی 1893 میں کریم بی بی، کس کے ساتھ؟ کریم بی بی بنت خاں بہادر عطا محمد، کس کی بیٹی تھی؟ بہادر عطا محمد سے ہوئی تھی۔ اور اقبال کی دوسری شادی ہوتی ہے 1910 میں۔ کب ہوتی ہے؟ 1910 میں۔ کس سے ہوتی ہے؟ سردار بیگم سے ہوتی ہے۔ سردار
बेगम से होती है। इकबाल की दूसरी शादी सरदार बेगम से होती है। दोस्तों जो नई है चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचे। ठीक है, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकबाल की तीसरी शादी जो हुआ था 1913 में मुमताज़ बेगम से। किससे हुई थी तीसरी शादी? मुमताज़ बेगम से, मुमताज़ बेगम से। ठीक है, पहली शादी कब हुई? 1893। ठीक है, किससे हुई थी? करीम बीबी। किससे हुई थी? करीम बीबी। किससे हुई थी? 1893। पहली शादी 1893 में करीम बीबी से हुई थी। दूसरी शादी किससे हुई? जो है 1910 में जो है सरदार बेगम से, और 1913 में मुमताज़ बेगम से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1895 में इंटरमीडिएट और 1897 में बीए। ठीक है, 1895 उसने इंटरमीडिएट किया और 1897 में बीए किया। बीए है ना। और गवर्नमेंट लाहौर से पास किया था। गवर्नमेंट लाहौर से पास किया था। इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1899 में। अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा प्रोफेसर अलंदर से हासिल किया था। अनलदर। प्रोफेसर अलंदर लॉर्ड के ही याद में इकबाल ने नज़्म जो है नाला फिराक लिखी थी। किसके याद में? तो अर्नोल्ड लॉर्ड। ठीक है, ये अर्नोल्ड है, अर्नोल्ड से हासिल किया था। ठीक है, ये प्रोफेसर अर्नोल्ड की ही याद में इकबाल ने नज़्म फिराक लिखी थी। नज़्म फिराक किसकी याद में लिखी थी? तो अर्नोल्ड लॉर्ड की याद में। आगे बढ़ते हैं। इकबाल 1905 में, ठीक है, आला तालीम हासिल करने की गर्ज से यूरोप गए। 1905 में जो आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? यूरोप गए और 3 साल 3 साल इंग्लिस्तान में रहे। 3 साल इंग्लिस्तान में रहे। फिर इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर डिग्री हासिल किया। इकबाल ने कौन से यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर डिग्री हासिल किया? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया। आगे बढ़ते हैं। 1907 में जर्मनी के क्या है? मोख यूनिवर्सिटी। जर्मनी के मोख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, ठीक है, PhD डिग्री हासिल किया। कब किया PhD? 1907 में। 1907 में इकबाल ने जो है
अगला, इकबाल ने बैरिस्टर की डिग्री लंक्रान से हासिल किया था। ठीक है, 1908 में हिंदुस्तान वापस आ गए थे, है ना। अल्लामा इकबाल कब वापस आए थे, तो 1908 में वापस हिंदुस्तान आ गए थे। ठीक है, यूरोप में इकबाल की मुलाकात नुस्ते बर्गिस्तान जैसे दानिश्वरों से होती है। यूरोप में किससे मुलाकात होती है, जो है ना, नुस्ते और जो है बर्गिस्तान जैसे दानिश्वरों से होती है। ठीक है, इकबाल ने शायरी दागो देहलवी, इकबाल ने जो है शायरी दागो देहलवी और फलसफा में प्रोफेसर अर्लॉन्ड से फेज, है ना, फेज उठाया, अर्लॉन्ड से फेज उठाया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इकबाल ने जो है, इकबाल ने और यूनिटी कॉलेज लाहौर जो है और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दर्स तदरीस का प्रोफेसर इंजाम दिया था। कहाँ पे, जो है लाहौर में। कौन सा कॉलेज था, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वह जो है दर्स तदरीस का प्रोफेसर अंजाम दिया था। ठीक है, आगे है अरमगान हेजाज 1938 में, अरमगान हेजाज 1938 में इकबाल का वह शायर मजमुआ जो आधा अधूरा में है और आधा फारसी में, ठीक है, आधा फारसी में है। आगे है, इकबाल को उर्दू का जो है फलसफा शायरी कहा जाता था। इकबाल को उर्दू का फलसफा का जो है शायर कहा जाता था। इकबाल को शायरी जो है मुशरिक भी कहा जाता था। ठीक है, इकबाल को बयामी शायर भी कहा जाता था, इकबाल को बयामी शायर भी कहा जाता था। अंग्रेजी हुकूमत ने 1923 में इकबाल को शेर खिताब दिया था। कब दिया था, 1923 में शेर खिताब दिया था, शेर का खिताब दिया था, शेर, ठीक है, शेर का खिताब दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकबाल के कलाम में शिनत, ठीक है, इकबाल के कलाम में शिनत तलमीह का इस्तेमाल, है ना, कसरत से मिलता है। आगे है, एक अकबर इलाहाबादी, हजरत मोहानी और अल्ताफ हुसैन हाली इकबाल के मुआशरीन हैं। ठीक है, क्या है, अकबर इलाहाबादी, हजरत मोहानी, अल्ताफ हुसैन हाली जो है मुआशरीन हैं। ठीक है, और इकबाल ने दूसरी गोल मेज 1931 में और तीसरी गोल मेज 1932 में शिरकत किया था। ठीक है, इकबाल ने हजरत नादिर शाह अफगानिस्तान की जो है दूत पर प्रसिद्ध सुलेमान नदवी, है ना, सराश मसूद के साथ अफगानिस्तान का सफ़र 1933 में किया था, 1933 में किया था। इकबाल अंजुमन हिमायत, है ना, इस्लाम के सदर 1934 में मुंतखब हुए थे। क्या हुए थे, 1934 में, है ना, अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर मुंतखब हुए थे।
इकबाल ने सिराज मसूद की जो है ना दूत पर 1935 में जो है भोपाल का सफ़र किया था। 1935 में भोपाल पर सफ़र किया था। किसकी दूत पर? तो मसूद की दूत पर। आगे बढ़ते हैं। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज जो है गज़ल से किया था। शायरी का आगाज कैसे किया था? गज़ल से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जो नया है, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आपको आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और आपकी सिलेबस कंप्लीट हो। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेंगे तो भी हमें मोटिवेट मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा बनाने में। चलिए, इकबाल ने सबसे पहला जो है अरशद गार जो है गानवी, फिर उसके बाद नवाब मिर्ज़ादाग से इस्लाह ली थी। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म जो मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में गोश्तान हमला के उन्वान से शाये हुआ था। अगला पॉइंट, इकबाल ने यूरोप में क़याम के दौरान 1907 में जो है नज़्म तलबा अलीगढ़ के नाम से लिखी और उसी नज़्म से इकबाल के फ़लसफ़ा की बुनियाद पड़ी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ कि इकबाल ने यूरोप में क़याम के दौरान, ठीक है, 1907 में नज़्म तलबा अलीगढ़ के नाम से लिखी और उसी नज़्म के फ़लसफ़ा की बुनियाद पड़ी। ठीक है, आगे है हाली ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में तस्वीर दर्द के शायर को पसंद करके इकबाल को 10 रुपये का नोट दिया था। कितने का नोट दिया था हाली ने? 10 रुपये। कितने का नोट? 10 रुपये का नोट दिया था। इकबाल ने शायरी तक करने का जो है पुख्ता इरादा कर लिया था, मगर शेख अब्दुल कादिर और प्रोफेसर अर्लंड के कहने पर जो है इरादा से बाज आ गए। फिर से सुनिए, इकबाल ने शायरी तक करने का पुख्ता इरादा कर लिया था, मगर शेख अब्दुल कादिर और प्रोफेसर अर्नल्ड के कहने पर इरादा से बाज आ गए। हिंदुस्तान में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार इकबाल जो है चेहरे कायम की थी। ठीक है, हिंद पाक में इकबाल की शदशाला तकरीबात 1877 में जो है मुनक़दिर हुई थी। अब आते हैं क्या है इज़ारात व खुताबात। इकबाल को मुल्क इशरा का जो है खिताब 23 फरवरी 1901 में दिया गया था, है ना। कब दिया गया था? मुल्क इशरा
का खिताब 23 फरवरी 1901 में दिया गया था। मियां निजामुद्दीन, ठीक है, ने किसने दिया था? मियां निजामुद्दीन ने दिया था। अंग्रेज जो है गवर्नमेंट ने इकबाल को 1923 में शेर का खिताब अता किया था, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है डीलट की एजाजी डिग्री 1929 में, ठीक है, दिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने डीलेट के एजाजी डिग्री 1933 में किया था। और ढाका यूनिवर्सिटी ने जो है डीलेट की एजाजी की डिग्री 1936 में दिया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबादी यूनिवर्सिटी ने डीलेट की डिग्री 1937 में दिया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने डीलेट की डिग्री जो है 1938 में अता की थी। आगे चलते हैं। तसानीफ की बात करें तो नाला यतीम इकबाल की जो है पहली नज़म है। नाला यतीम इकबाल की पहली नज़म है जो अंजुमन हिमायत अलैहिस्सलाम के जलसे में पढ़ी गई थी, ठीक है। किसके जलसे में पढ़ी गई थी? है ना, अंजुमन हिमायत अलैहिस्सलाम के जलसे में पढ़ी गई थी। मस्जिद जो है करतबा और शाकी नामा इकबाल की मशहूर नज़में हैं जो हिंदुस्तान के बारे में लिखा गया है। इसरार हुदी और रमूज़ पे खुदी इकबाल के दो मशहूर फारसी में मशनूआ हैं। इकबाल के चार और शायरी मजमूए हैं। इकबाल के और चार और शायरी मजमूआ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बांगे दरा। बांगे दरा जो है कब शाये हुआ था? 1924 में, ठीक है। बांगे दरा 1924 में पहला उर्दू, है ना, शायरी मजमूआ। अगर बात करें हम कि पहला उर्दू शायरी मजमूआ जो है वो बांगे दरा है। कब शाये हुआ था? 1924 में। कब शाये हुआ था? 1924 में। और बाल जिब्रील की बात करें तो 1935 में शाये किया था। दूसरा उर्दू शायरी मजमूआ है, ठीक है, दूसरा। और ज़ब्र कलीम ये तीसरा मौजूआ है। ज़ब्र कलीम कब हुआ था? 1936 में। अरमगान हिजाज 1938 में। ये मजमूआ आधा अधूरा और आधा फारसी में है। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा। चलिए, जो है तराना हिंद, ठीक है, जो है। उसके बाद हमला, उसके बाद तस्वीर दर्द, शाकी नामा, दुआ, एक जो है मकड़ा और एक मकड़ी, ठीक है। परिंदा की फरियाद। अच्छा, मुसलमान और तालीम जो है जावेद। शिकवा, ठीक है। आबरू को हिशार, ठीक है। उसके बाद नाला फिराक, आफ्ताब सुबह, जो को शौक, एक पहाड़ का घेरी, ठीक है, गिलहरी है। उसके बाद आफ्ताब, उसके बाद जवाब शिकवा, परिंदे की फरियाद, खुजर राह, प्याम सुबह, लाला शहरा, एक गाले और
ایک گالے اور بکری ترانہ ملی ہے نا، یہ جو ہے نا، لیلی نے خدا کی حضور ایک آرزو، طلوع اسلام حقیقت حسین ہے نا، نیپولین کی مزار پر۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک پہاڑ اور گھر یہ تو بتا دیا ہندوستانی مسلمان۔ اس کے بعد ترانہ ملے سلطان ٹیپو و حیثیت، ٹھیک ہے، اور ماں کا خواب، سمائے شاعر خود کی زندگی، خودی کی زندگی، ٹھیک ہے، یہ ان کے شاعر تھے۔ اور جو ہے شائع امید بھی ہے نا، کارل مارکس کی آواز بھی ہے، آزادی کی نوشواں بھی ہے، مکہ اور جونوا بھی ہے۔ دیگر جو ہے تصانیف بھی ہے نا ہے، جو عالم الافساد پہلی نشر اور تصنف ہے۔ مثنوی جو ہے اسرار خودی 1905 میں اقبال کے یورپ سے واپس کے بعد سب سے پہلے شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے، کب شائع ہوا تھا؟ 1905 میں، جب وہ یورپ سے واپس آئے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ رموز بے خودی، رموز بے خودی جو ہے 1918، اسرار خودی کا دوسرا حصہ، اسرار خودی کا اگر سوال ایسا ہے جو ہے رموز بے خودی کس کا حصہ ہے تو اسرار خودی کا دوسرا حصہ ہے۔ کب شائع ہوا؟ 1918 میں۔ کب شائع ہوا؟ 1918 میں۔ پیام مشرق 1922 میں۔ یہ جرمنی کے مشہور شاعر گوٹے کے مغربی دیوان کا جواب ہے نا۔ پھر زبور اعظم، یہ شیخ سعداد الدین محدود جو ہے مصنوعی گلشن راز کا جواب ہے۔ پھر جاوید نامہ 1933 میں، جاوید نامہ 1933 میں شائع ہوا۔ اقبال سے متعلق مختلف جو ہے آراء اور خیالات ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ اقبال کے نظموں کا جو ہے شباب اقبال کی غزلوں سے شباب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ راشد احمد صدیقی نے کہا، ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ کیا کہا؟ کہ اقبال جو ہے اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کے شباب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ راشد احمد صدیقی نے کہا، ٹھیک ہے۔ حالی جو ہے ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ بھی راشد احمد صدیقی نے کہا۔ اکبر جو ہے مبشر حالی معلم اور اقبال کے مزاحد ہیں، یہ بھی اسی نے کہا۔ اقبال نے غزل کو جو ہے بزمیہ اور رزمیہ کے درد حیات تک پہنچا دیا، یہ بھی راشد احمد صدیقی نے کہا ہے۔ اس کے حساب سے اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے، اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور جو ہے ڈھونڈچی میں ہوتا ہے، یہ خلیل عبدالرحمن اعظمی نے کہا تھا۔ اقبال کے یورپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ عبدالقادر نے کہا۔ کیا کہا؟ اقبال نے یورپ میں غالب جو ہے دوبارہ جنم لیا، ٹھیک ہے۔ مجاہد وادی نے اقبال کو امام العشر کہا۔ ابن مرسمل نے اقبال کو جو ہے جرمنی کا مؤنف
جو ہے فرزند کردار دیا تھا۔ عین میر سمرنا اقبال کو جرمنی کا جو معنوی فرزند قرار دیا تھا۔ یہ ہو گیا تھا بھائی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظر احمد نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے جو ہے ان سے وہ بیر کے کئی جو ہے مرثے سنے ہیں، لیکن دل جو ہے سوج نظم کبھی نہیں سنی۔ جو ہے آل احمد شرور نے کہا کہ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو فطرت ہستیز خوب سے خوب جو ہے ترقی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا جو ہے ایک بلند تصور رکھتا ہے۔